बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, आपको किराएदारों और मालिक मकान की तरफ लिए चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मालिक मकान का ताल्लुक है नून लीग से, किराएदारों का ताल्लुक है PTI से। पिछले दिनों जब जंग का माहौल बना था तो दोनों एक हो गए थे, कोई इख्तलाफ नहीं रहा था। देखते हैं अब क्या सूरत हाल है किराएदारों और मालिक मकान की तरफ। आइए। इंडो पाक दी जंग तो टल गई है ना। अभी पूरी तरह से चट्टा साहब टली तो नहीं है, मगर बहरहाल वो जो खतरा था कि जंग अब लगी कि तब लगी, वो खतरा जो है उसकी शिद्दत में कमी आ गई है। कमी आ गई ना जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो जंग टल जाएगी और दुआ करनी चाहिए कि मुस्तकिल तौर पर ये टल जाए। आमीन। वो जंग तो टल गई है ना, पर इस मालम मकान ने ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗੀ। ਓਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰੋ, ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਫਲਾਈ ਇੱਟੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦੰਦ ਤੋੜਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਲੀ ਹੋਣ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦੀ ਵੜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਥੱਲੇ, ਗਿੱਟੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕਰਨਾ ਰੋਂਦਾ ਚੱਠਾ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਆ ਫੜਾਣਾ ਥੌੜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਸਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਪਾੜਦੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾੜ ਸੀ? ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਲਾੜ ਦੀ ਬਚੀਏ? ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਨਿਛ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਛਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਛਿਕ ਐ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸੀਆਂ ਨਿਛਾਂ ਨਸ਼ਈ ਦੀਆਂ ਫੀਛੀ। ਹਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਖੋਤੇ ਜਿੱਡਾ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਏ ਆ ਬੇਗਮ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਥੱਲੇ ਖੋਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਖੋਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ? ਤੂੰ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬਣ ਏਡੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਚਨਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਣਾ? ਓਏ ਕਚਨਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਓਏ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਿੱਕੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਗੁੱਜਰ ਕਹੋ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਗੁੱਜਰ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਉਹ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੰਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਖਾਈਏ ਰਾਣਾ ਨੂਨ ਲਿਗੀਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਓਏ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪੱਥਰੀ ਤੇ ਕੰਧ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਓਏ 70 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਓਏ ਛਾਲਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਗਿੱਟਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਜੇ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਫਸੀ ਜੀ। वो क्या? ਇਹ ਲੰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਤੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਓ ਬੱਲੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀਆਂ। ਓਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ MPs ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਓ 3-3 ਲੱਖ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਣੇ ਨੂਨ ਲਿਗੀਏ ਦੀ ਸੁਚਲ ਹੈ। ਐ ਸਿਗਰਟ ਬੰਦ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 3 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੰਜ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਾਲ। ਓ ਜਿਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਓਏ ਓਏ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੁੱਪ? ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਬੱਜੀ ਛੱਡ ਇਹ ਦੇ। ਵੱਖਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬਿਠਾਈ। अरे भाई दुहाई है, भाई दुहाई है, देखा तुमने? ਓ ਆ ਗਿਆ ਜੇ बंगाली जादूगर। अरे क्या हो गया भैया? अरे वाह भाई वाह, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। आपकी बीवी ने मारा? आपकी बीवी ने? अरे नहीं भाई, वो तो रोज मारती है, उसकी छोड़ो। अरे सिंध असेंबली में रशीद को मारा। अब्दुल रशीद है ना उसका नाम, बड़ा मारा उसको यार, बड़ा मारा। अरे भाई को समझा दो मुझे।
अरे राणा कहाँ गया काना? और राणा तुम ही बता दो, अरे ये सिंध असेंबली में क्या हो गया था राणा? अरे बांके मियाँ को कोई तो समझाए गिलोरी खा के। क्या हुआ भाई? अरे ये सिंध असेंबली में कानून साजी करने जाते हैं या मारा मारी करने जाते हैं या दंगा करने जाते हैं या कुश्ती करने जाते हैं? भाई बताओ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और रेटिंग ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਰਾਜ ਦਰਾਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਾ ਹੋਏ। ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਜ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ। हाँ गिलोरी खा के। ਹਾਲੋ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਰਾਏਗਾ ਇਹ। हेलो वो काली च पटाखा खा गया जी। अरे भाई ये किराची की गिलोरी है, इसके आगे पटाखा क्या चीज है? गिलोरी खा के। वैसे पीटीआई ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਰਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਜਵਾਬ ਜੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं क्या वीरा, तू सलमान खान का डायलॉग नहीं सुनया? जब मैं हारने लगता हूँ तब मैं मारने लगता हूँ। ਓਏ ਸੁਣਿਆ ਰਾਣਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਓਏ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। इजी हो जाओ राणा साहब, 5 साल तक साडा कोई नशे नहीं फड़िया जाएगा। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। इसका मतलब है 5 साल जितनी मर्जी गिलोरियां ਓ ਗਲੋਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮੋਟਰਵੇ ਗੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਗਿਆ। ਓਏ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? मैं क्या वीरा, तू चुप क्यों नहीं करदा? क्यों नहीं करदा चुप? ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਏ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਏ। ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਓ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਉਹ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 3 ਲੱਖ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। उठा तेन उन्होंने मुंह तो करा के आवा चल। ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। तू चुप क्यों नहीं करदा? क्यों नहीं करदा चुप? नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਏ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਏ। गिलोरी खा के। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है जी। माहम रहमान साहिबा, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? शाजी अब बारी है हमारे सेगमेंट ज़रा ढंग से सुनिएगा कि जिसमें हमारे ऑडियंस के गानों पर हेडफोन्स होंगे और उसमें लाउड म्यूजिक होगा और हमारे साथी फनकार कोई जुमला कहेंगे जिसे वो होंठों की जुम्बिश से पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। अरे वाह महम वाह। PSL ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਜੀ ਨਾ ਚੌਕਾ ਵੱਜਾ ਨਾ ਛਿੱਕਾ ਵੱਜਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਕੌਰਨ ਖੋ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੜੀ, ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੜਕਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਐ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਜਲਵੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਚੜਾ। जी रुखसाना साहबा, जरा ढंग से सुनिएगा। आजकल मोदी की बूथी देखने वाली, बाद में बात करते आजकल आजकल मोदी की बूथी देखने वाली। आहिस्ता। आजकल आजकल मोदी, पूरी दुनिया। पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ मोदी। मोदी की बूथी आजकल आज कल आजकल 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 मोदी की बूथी। आप बोले आज
आजकल मैं तेन मूदी लगन दिया आजकल मोदी की बूथी देखने वाली है। मोदी आज पूरी मोदी म्यूजिक मोदी म्यूजिक मोदी नहीं मेरी Music. भैन मोदी ने लाए नहीं लेना चाहती हो। जी मोदी कल परसों यार चाह बनाने वाला चाह यस चावल चाय पोनी चाय वाला चाय मोदी वाला आजकल मोदी मूदी हाँ वेरी गुड आजकल मोदी की आजकल मोदी की बूथी आजकल ही मोदी की मुंह काला जी शाह जी अभिनंदन इंडिया वापस जा रहे सी तो बच्ची रो रही सी वो क्यों? कहनी टुट पैना मेरे प्यो का 2 पीस पा के जा रहा बेटा तेरा अब्बा भी लंडे का कोट पाਉਂਦਾ ऐसी बात ना करे, बहुत आला कोट पहना के भेजा है उसे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਕੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ जी ताहिर साहब, जरा ढंग से सुनिएगा। अबाबील का मुकाबला राफेल भी नहीं कर सकते। आहा, बड़ी दूरों सवाल लब के ले आया भाई। ये तो तारीखी हकीकत है। अबाबील अबाबील का मुकाबला अबाबील अबाबील का मुकाबला राफेल भी नहीं कर सकते। अबाबील का मुकाबला अम्मी ने मुक्का मारा अबाबील अबाबील का मुकाबला राफेल भी नहीं कर सकते। इतना मोटा अबाबील का मुकाबला राफेल भी नहीं कर सकते। नहीं जाना नहीं जानना। अबाबील का मुकाबला राफेल भी नहीं कर सकते। अबाबील अबाबील का मुकाबला अबाबील राफेल भी नहीं कर सकते। अबाबील परिंदे अबाबील हाँ वेरी गुड अबाबील 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 का मुकाबला राफेल भी नहीं परिंदे हवा में उड़े हैं नहीं, पानी में उड़े। अबाबील का मुकाबला राफेल भी नहीं कर सकते। नहीं 1947 ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦਾ अबाबील का मुकाबला राफेल भी नहीं कर सकते। अबाबील अबा अम्मी ने अम्मी नहीं अबा अम्मी नहीं अबा अबाबील अबाबील का मुकाबला राफेल भी नहीं कर सकते। मुक्का मारा मुकाबला ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਬੈਠਾ। पीएसएल ਚ ਛੱਕਾ ਵੱਜਾ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਓ ਇਹ ਕੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੇਂਦ ਹੀ ਗੁੰਮ ਗਿਆ। जी रुखसाना साहबा, जरा ढंग से सुनिएगा। चौहान आउट समसाम इन। अभी पाकिस्तान जिंदाबाद चौहान चौहान आउट समसाम इन। समसाम इन छिक्का छिक्का जमीन पे पड़ा चौहान चौहान जमीन ते पिया चौका चौहान आउट चौहान आउट आउट हो गया चौहान आउट हो गया। चौका आउट हो गया चौहान आउट चौहान समसाम इन। जमीन पे गिर पड़ा लबड़ी हरकता दो। चौहान आउट ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। चौहान आउट चौहान आउट आउट हो गया वो चौहान 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 यस यस चौहान आउट 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 समसाम इन चौहान आउट समसाम समसाम इन संसाप ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। समसाम समसाम इन। कम शाम यस चौहान आउट समसाम इन। शमशाउन गिर पड़ा ਆੜੂਆਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆੜੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਬੱਚੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ वो क्यों? ਕਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਦੀਕੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਸਦੀਕੀ ਇਹਦੇ ਚਾਚੂ ਨੇ। कैसे तू वसी भाई ठीक है जरा ढंग से सुनिएगा। समसाम बुखारी सूफी वजीर इत्तलात। ध्यान से सुनिएगा समसाम बुखारी सूफी वजीर इत्तलात। संभार बुखारी समसाम समसाम बुखारी यस सूफी। सूफी वजीर इत्तलात। समसाम बुखारी सूफी यस सूफी
वजीर इत्तलात। वजीर इखलाकी। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है जी। माहम रहमान साहिबा, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? शाजी ਇਹਦੀਆਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਛੁਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। जी जी कर दीजिए, जी कर दीजिए। शाजी अब बारी है ਸਾਡੀ ਕੰਬਖਤੀ ਦੀ। ਸ਼ੇਰੀਆਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। जब तुमने कहा लग गया पता तो मेरे दिल में घुंघरू बजने लगे। मेरे जहन के मौत के कुएं में मोटरसाइकिल दौड़ने लगा, वो भी बगैर सलेंसर के। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे फलकी का कहीं से पता लग गया है। सरदार साहब फलकी तो किसी भी मेला मंडी चो लभ जाएगा। ਕਿਸੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਤਲਮਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੋਏਗਾ। अब 300-400 साल पुराना शायर किथों लभांगे? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇਸੂਦ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਫਲਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। सरदार साहब ਤੁਹਾਡਾ फलकी भी मिल जाएगा। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਰਮੂਦਾ ट्रायंगल ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਦੀ ਵੀ। नहीं रक्षी नहीं रक्षी, नहीं मिलेगा वो। बरमूदा ट्रायंगल में खोए हुए मिल जाते हैं। ਸਰਗੋਧੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਫਲਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। मुझे भी सरगोधा के एक शायर पे शक है कि उसने मेरे फलकी को हल्की हल्की गजलें सुनाकर बहका दिया होगा। ये उंगली का इशारा आपने मेरी तरफ क्यों किया? अगर मुझे फलकी की बदनामी का डर न होता तो सारा किस्सा अभी बयान कर देता कि मेरे फलकी के 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। अस्तगफिरुल्लाह। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਲਕੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। और किनारे पे खड़े होके गाया करते थे, तेरे भीगे बदन की खुशबू से फलकी के बदन की खुशबू से लुटे वाली नहर कोई दीवानी सी। मेरे माजी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई दाग नहीं है ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂਦੇ ਆਧਾਰ ਦੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। तो शाजी मैं बता रही थी कि अब बारी है हमारे सेगमेंट शेरियात की। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ 200 300 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਟੀਨ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? और रासपुटीन पड़ेगा। मैं भी एक दिन शाजी नु क्या कि शाजी ये शेरियात कदी कदी दिमाग विच मोरियां कर देता है। कह लगे अच्छा है मोहतरमा, दिमाग को हवा लगती रहेगी। अब्बू जी जी बेटा। अब्बू जी घर खर्चा भी दिया करो, खाली क्लेम ही करते रहते। अब्बू जी ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ। अब्बू जी ना मैं तुहाडी हुक्म उदूली करदा, ना मैं स्टेज ड्रामे लाउंदा, ना मैं हिट हुंदा, ना मैनू एक्सप्रेस न्यूज़ वाले ऑफर करते, ना मैं सियासी थिएटर चाहता, ना मैं शाह जी दे मत्थे लगदा, ते ना मैं शेरियात दे अजाब दे विच फसदा। जी अब्बा जी ठीक कहते सन, पुत्र प्यो दी नहीं मनेगा तो सारी जिंदगी शायर ही लभेगा। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਲੰਘੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਏ, ਉਹ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਟੀਐਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? सुना है कातिब रहान पर तनकीद करने वालों को इतनी मिर्जा ने गालियां नहीं दी थी
जितनी इसको दी। वो तो पंजाबी च उन्होंने गाला कढ़िया ने कि नाजा तेरी मैं महबूब दे दर्दा वाह वाह हुंदा है। सरदार साहब ये वाव वाव क्या होता है? महबूब दे दर्दा सग हुंदा है, सगे महबूब। बस तो कम वक्त ना हंजार तस्वीर में भी चैन नहीं लेने देते। अंदाजा कीजिए कल कोई मन चला मेरी तस्वीर पे लिख गया, गालिब तस्वीर के पर्दे में भी उरियां निकला। तो मिर्जा आप ही ने तो कहा है कि शौक हर रंग रकीबे सरो सामा निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरियां निकला। कैस तो कम वक्त हमारा उरिया था तो हमने लिखा, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरियां निकला। गालिब को उम्र भर किसने उरियां देखा? बकौल अहमद फराज के घर के दरो दीवार के अलावा। क्या मतलब? क्या मतलब? बस इन्होंने क्या मतलब दे विच ही उलझाई रखो, शायर वाले पासे जा नहीं। भूल गया फराज का शेर? कौन सा वाला? फराज को हमसे ज्यादा महबूब कौन था? अच्छा, वो शेर उन्होंने हम ही पे कहा है। कौन सा? किसे मजाल के बेपरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। लगता फलकी नहीं लभन लग पिया। और वसी तुम तो अच्छी तरह जानते हो क्या? कि फराज ने ये गजल हमारी गजल को ट्रिब्यूट पेश किया था। ये हम जो हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामाबर को देखते हैं। हाँ, इसी गजल में हमने कहा था। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ, तुम ही शुरू हो गए। फिट वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी हम अपने घर को देखते हैं। और तकरीबन हमारे 200 साल बाद फराज ने हमारे लिए लिखा, क्या? पलंग जाविये उसकी कमर के देखते हैं। हाय हाय, फराज ने हमारे लिए क्या लिख दिया, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। फराज साहब की गजल से नफरत करवाएंगे आज ये। शाह जी ये पागल हो गया जी, ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਛੱਡ ਆਓ। हजूरी बाग नूं छड्डो, इहनूं किसे मजदूरी बाग च छड्ड के आओ। जहां हमें रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, क्या लिख दिया फराज ने मेरे लिए लिखा, मेरे लिए। फराज ने क्या लिखा? ਇਹ ਗਾਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜੀ। अब हम कैसे ठीक हो सकते हैं? अब तो हमें हिरन दश्त भर के देखते हैं। ਓਏ ਨਕੜਮਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਿਰਨ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਨ। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। यही कह रहे होंगे। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਅਮਜਦ ਇਸਲਾਮ ਅਮਜਦ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। और शेरियात में आज हमें जो शेर डिस्कस करना है, शोरे आफाक शेर है। मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी है गैरों ने, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी है गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। बेशतर लोग ये समझते हैं कि ये ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का शेर है और उसी गजल का शेर है कि ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। वापस आकर आपको बताएंगे कि ये ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का शेर नहीं है। किसका है? ब्रेक से वापस आकर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। शाहजी, हमारा सेगमेंट चल रहा था शेरियात, और एक बड़ी हैरत अंगेज बात आपने बताई है कि ये जो शेर है, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी है गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते। बेवफा। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का शेर नहीं है? जी, ये ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का शेर नहीं है। और एक जमाना ये समझता है कि जो उनकी मारूफ गजल है, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, ये उसी गजल का शेर है। दुनिया ये समझती है, मगर ये उस गजल का शेर नहीं है, ना ही ख्वाजा हैदर अली
आतिश साहब का ये शेर है। शाहजी ने ब्रेक में गूगल करने का कहा था, क्या निकला गूगल से? ਮਾਹਮ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਚੂਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ। शाह जी देखो चूचे भी किडे बाज आओक ने अपनी जुबान च दांत दे रहे ने चू 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 भाई गूगल में से $1000 निकल आएंगे जो मैंने कमबख्त मारे ताहिर से लेने हैं। गूगल में से मेरी सास निकल आएगी मगर शायर नहीं निकलेगा। ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਵੇ ਕੀ ਗੱਲ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਂਝ ਜੋ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਏ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ। गूगल बेतबारा जो है इन्हें अपने दादे का नाम लिखा किसी और दा आ गया। अच्छा देखिए, आज अगर गूगल से भी आपको इसका जवाब मिल जाए ना तो 50,000 नहीं लाख रुपए का इनाम। अगर आप ये बता दें कि ओरिजिनली ये शेर जो है, मेरी नमाजे जनाजा पढ़ी है गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते, किसका है, तो 1 लाख रुपए का नाम। नाजरीन भी गूगल करके चेक कर लें। ਓਏ ਗੂਗਲ ਹੋਸ਼ ਫੜ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾਤੇ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3310 ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬਟਨ ਨੱਪਣਾ ਹੈ। जल्दी बताएं, शायर का नाम मिला गूगल से, लाखों रुपए का मामला है। ਮਾਹਮ ਜੀ ਤਰਲੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬੇਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਆਜ਼ੁਲ ਹਸਨ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। और शाह जी देखो मैं गूगल ते सिर्फ बुलबुला लिखे है ते फवाद चौधरी का नाम आ गया। ਸੂਈ ਮਾਰ ਦੇ, ਸੂਈ ਮਾਰ ਦੇ। अगला मारन देंदा। अच्छा, वैसे फवाद चौधरी साहब काटदार जुमला कहते हैं, मगर ये उन गुजरा में से हैं जो बड़ा अच्छा शेरी ज़ौक़ रखते हैं। शाहजी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये शेर उस गजल का नहीं है, हालांकि ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते। ये गजल तो उस्ताद अमानत अली खान से कहने उस्ताद अमानत अली खान साहब। वाह, ये अमानत अली खान साहब भी गा सकते क्या सन। कहने। अदनान समी गांदा ते कोड़े वजने सन। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਕਰੀਬ ਕੋੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। हाँ, ऐसे बंदों को जब कोड़े पड़ते हैं तो मुंह से ये नहीं निकलता हाय अम्मी, निकलता है तो हाय मूदी मरवा दिया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਕੋੜੇ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਜੇਬਾ। इस बात पे तो 2 कोड़े उसको और पड़ेंगे। अबे ओ मोटू, अब उसको क्यों याद किया तू? अच्छा जी, तो आप सही कह रही है माहम, लेकिन आप देखें कि आप जितनी भी रिकॉर्डिंग्स उठा के देख लें, उस्ताद अमानत अली खान साहब ने जब ये गज़ल गाई है, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, तो ये वाला शेर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कभी उन्होंने नहीं गाया। कोई ऐसी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी जिसमें उन्होंने ये शेर गाया हो। बल्कि प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में मेरी बात हो रही थी उस्ताद हामिद अली खान साहब से, जो उस्ताद अमानत अली खान साहब के छोटे भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये भाईजान नहीं, यानी कि उनके जो भाई थे, उन्होंने कभी ये शेर नहीं गाया था। अलबत्ता वो और असद जो है वो जब पढ़ा करते थे तो वो गाया करते थे, और मैंने उनसे डिस्कस किया तो वो भी हैरत का इजहार कर रहे थे कि यार हम भी यही समझते थे कि गालिबन ये हैदर अली आतिश साहब ही की गज़ल का शेर है, हालांकि ये हैदर अली आतिश साहब की गज़ल का शेर नहीं है। और ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब जो थे वो मुसफ़ी के शागिर्द थे। मुसफ़ी और मुसफ़ी का ताल्लुक जो है वो अमरोहा से था। अमरोहा ही में इनफैक्ट उनकी पैदाइश हुई थी, और जॉन साहब भी अमरोहा से थे, जॉन एलिया मरहूम। और जॉन साहब सारी ज़िंदगी फ़ख्र करते थे कि उनका ताल्लुक उसी अमरोहा से है जिससे मुसफ़ी का भी ताल्लुक है। ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੌਰੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ। यार कैसे मुमकिन है कि मुसफ़ी का जिक्र हो और उनका शेर जो है, और ख़ास तौर पे सबसे पहला शेर जो मुसफ़ी का याद आता है वो वही लोगों के जहन में आता है कि मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख्म, मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। हालांकि मुसफ़ी को आप पढ़ें तो ऐसा ऐसा शेर है, ऐसा ऐसा शेर है मुसफ़ी के पास कि इंसान बस सर धुनता रहे। ਲਓ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ। लो सिर्फ एक और चले। लोग कहते हैं, ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਫਲ 'ਚ ਗੋਲੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ। लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है। वाह। लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है। दिल पे लगा आपका ये मिसरा। मुसफ़ी का है। लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है,
कौन से शहर में होता है, किधर होता है? दिल चाहता है घूम जाओ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਦੋਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। शाहजी मुझे लगता है ये शेर है नासिर काजमी साहब का। नहीं, ये नासिर काजमी साहब का बिल्कुल शेर नहीं, फिर ये अहमद फराज साहब का होगा। कतई नहीं। हो सकता है उन्होंने लिख दिया हो, आपको बताया ना हो। जो चीजें फराज साहब की नहीं छपी ना, मैंने वो भी पढ़ी हुई हैं। और इवन वो चीजें जो यानी कि मुशायरों में जाते हुए यानी कि बाजू का जो छपने के लिए नहीं होती, हमें तो उसका भी पता है। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ हमारे बुजुर्ग भी थे, हमारे दोस्त भी थे, तो बहरहाल क्यों नहीं पता होगा। ये फराज साहब का भी शेर नहीं है। अकबर इलाहाबादी साहब का नहीं, नजीर अकबर आबादी नहीं, फिराक गोरखपुर आबादी नहीं, फराज साहब का भी नहीं। शाह जी जिस किस्म के शेर लिखते सन इन्होंने आबादी च वड़न कौन देंदा सी? यार ये जिस किस्म के शेर कहते थे, यही लोग तो आबादी का फख्र और शान हुआ करते थे। शाहजी मुस्तर खैर आबादी नहीं, तालिब फैसलाबादी नहीं, जिगर मुरादाबादी नहीं, जिगर साहब का भी शेर नहीं है। तो जाने जिगर, जब हमारा जिगर फट जाएगा तब बताएगा ये शेर किसका। सरदार साहब, अब आप बदतमीजी पे उतर आए हैं। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰ ਫਟ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਕਰਾ ਲਓ। बताएं जी, शायर का नाम बताएं और लाख रुपया पाएं। बताएं ये शेर किसका है? मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। अबे वो जिनके लिए मरे थे ना, उन्हीं से पूछ कि शायर कौन था। आप तू तड़ाक पे उतर आए, गलत बात है ये। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 200 ਵਾਸਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। शाहजी खुदा के लिए बता दें कि अगर ये शेर आतिश का नहीं है तो फिर किसका है? जी देखिए, आप दीवाने आतिश उठाकर देखें, जितने भी मुस्तनद जो ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब के दीवान छपे हैं, उनमें कहीं ये शेर ख्वाजा साहब ने शामिल नहीं किया, ना ही उनसे मंसूब किया किसी ने, ना ही तस्करों में मिलता है। और बाद में ये भी पता नहीं लगता कि किसने इसी ज़मीन में ये गज़ल कही या ये शेर कहा, और ये भी पता नहीं लगता कि कब ये शेर आतिश साहब की गज़ल में शामिल कर दिया यार लोगों ने। उर्दू एकेडमी सिंध कराची, जो कि बहुत ही मुस्तनद इदारा है, उसने भी जो 1963 में 1963 में ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का जो दीवान छापा है, अगर आप उसके सफ़ा नंबर 391 पे 391 पे चले जाएं तो ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब की ये गज़ल उस पर मौजूद है। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, मगर ये शेर जो है ये उसमें नहीं है। अरे भाई ये फिर किसका है, उसका नाम बताना। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ नहीं लाया, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ नहीं ਦਿੱਤਾ। अच्छा जी, एक्चुअली आप जितनी भी उर्दू अदब की तारीख खंगाल लें, जो बहुत ही मुस्तनद मुहक्किकीन हैं, किसी के यहाँ इस शायर का नाम नहीं मिलता है। कोई नहीं जानता कि ये शेर किसने कहा और कब ये शेर ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब की गज़ल में शामिल कर दिया गया, उनसे मंसूब कर दिया गया। तो ये शेर मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, उन अशार में से एक है जिसके शायर का कुछ पता नहीं है, मगर ये तय है कि ये ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का शेर नहीं है। नाज़रीन करामी, ये था आज का शो, और इसी गजल के एक और खूबसूरत शेर पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हेलो, जाते जाते भी एक कदा सुनाना जरूर है, सुनाना। जो देखते तेरी जंजीरे जुल्फ का अलम, जो देखते तेरी जंजीरे जुल्फ का अलम, असीर होने की आजाद आरजू करते। वाह, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।